Good morning, children. I am Sister Elda, Catholic Mission High School, Jhabua. Class 7th, subject English. Lesson number 14. A visit to Orcha. A visit to Orcha means Orcha का भ्रमण. Orcha का भ्रमण. What do you understand by Orcha? Orcha, one will understand. I will ask first 3 general question. Then we'll go lesson. Then you will come to know the Orcha का भ्रमण. A visit to Orcha. A visit to Orcha. Orcha का भ्रमण. Therefore, I will ask lesson number 14. General 3 question. Okay? Children, have you seen any old temple? Have you seen any temple? क्या आपने कोई पुराना मंदिर देखा है? Have you seen any temple में आपने कभी पुराना मंदिर देखा है? Yes, I have seen the Kanman temple. I have seen the Kanman temple. Okay? Do you know when it was built? तो ये टेम्पल क्या आप जानते हैं इसका निर्माण कब हुआ था? क्या आप जानते हैं कि कब इसका निर्माण हुआ था? Do you know when it was built? Yes, it was built in 14th century. कब बना था ये? 14वीं शताब्दी में बनाया था. कब बनाया था? 14वीं शताब्दी में ये बना था. यह 14वीं शताब्दी में बनाया था. Where is situated? Where is it situated? ये कहाँ स्थित है? ये इसका मतलब है ये कहाँ स्थित है? Where is situated? It situated is Sioni in district Morena. Sioni in a district Morena. Sioni in district Morena. Sioni in district Morena. It is situated in Sioni in district Morena. कि यह मुरैना जिले के शिवोनी में स्थित है. Situated में स्थित है. Okay? Children, now open your textbooks. Point out your finger. Where I am, paragraph I am reading. Pay attention what I am reading. This lesson is a very, very important. If you don't understand, you have to tell me after the lesson, either in between. Sister, I have not understand. Okay? Don't worry about. Now you point out the finger. Where I am reading, paragraph to paragraph, I will explain. Okay? Those temple, lesson number 14. A visit to Orcha. Orcha का भ्रमण. Those temples on the bank of the Batwa were beautiful, said बोला. Beautiful का मतलब सुंदर. ओके? और इसका बेटवा के किनारे पर एक सुंदर मंदिर है. बेटवा के किनारे पर एक मंदिर बहुत सुंदर थे. ऐसे किसने बोला? बोला ने बोला कि बेटवा के किनारे में एक सुंदर मंदिर है. ऐसे किसने बोला? बोला ने बोला. बोला ने बोला. ओके? समझ में आए? But teachers said there were chatras
टेम्पल सेड सचिन। इसका अर्थ है कि लेकिन सचिन ने बोला, लेकिन अध्यापक ने बताया कि वे छात्रिय थी, मंदिर नहीं थी। सचिन ने कहा कि लेकिन अध्यापक ने बताया था कि छात्रिय थी, मंदिर नहीं। वो छात्रिय थे, मंदिर नहीं थे। सचिन ने कहा डू यू मेन अम्ब्रेलास? आस शोभा। इसका मतलब क्या? तुम्हारा अर्थ छात्रियों से है? शोभा ने पूछा, क्या तुम्हारा अर्थ छात्रियों से है कि ऐसे किसने बोला? शोभा ने बोला। ओके, नो umbrellas. Teacher said that some buildings are called chhatras due to their form and structures. Answer Sachin. Structure का मतलब क्या मैंने बोला है? Structure में संरचना, बनावट। Structure का मतलब है क्या है? संरचना, बनावट। इसका अर्थ है नहीं। छात्रियों का अध्यापक ने कहा था कि कुछ इमारतों को छात्रों उनके रूप में बनावट के कारण कहा जाता है। सचिन ने उत्तर दिया। Soon there was much noise. Noise का मतलब आवाज। Noise in class 7 because they were all discussing their visit to Orcha. All of them were very happy and excited to discuss their visit. Okay? इसका मतलब है कि 7वीं की कक्षा बहुत शोर, नॉइस का मतलब शोर हुआ क्योंकि वे सब आरक्षक के भ्रमण, ओरछा के भ्रमण में के विषय में चर्चा कर रही थी। डिस्कस का मतलब चर्चा। एक्साइटेड उत्तेजित, एक्साइट का मतलब उत्तेजित होना। नॉइस शोर, बच्चे ओरछा के भ्रमण के जाने, डिस्कस विचार कर रहे थे, जाने के लिए डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस का मतलब एक दूसरा भी है चर्चा करना। ओके, I have seen a word on the board near those chhatras. सेनापत, सेनापत मैंने लिखा। सेनापत का मतलब है, सेनापत का मतलब है स्मारक। सेनापत स्मारक। I will ask it meaning. Say आसमा। इसका मतलब है उन छात्रियों के पास रखे तंबू पर मैंने एक शब्द देखा, सेनापत। मैंने उसका अर्थ पूछा, स्मारक। बोली स्मारक। क्या बोली? स्मारक। रमेश से I would like to know the name of the 2 rivers that we saw flowing at Orcha. रमेश ने बोला कि 2 नदियां का नाम जानना चाहूंगा, उनके हमेशा ओरछा से बहुत देखा था। ओके, Yes, what do you want to ask me? Their teacher, Mr. Shah asked as I entered the class. देखो, हाँ, तुम क्या पूछना चाहते हो? उनके अध्यापक मिस्टर शाह ने कक्षा में प्रवेश करते हुए प्रश्न विचारा। जैसे मिस्टर शाह क्लास में, कक्षा में आया तो बच्चे ने एक प्रश्न पूछा। Sir, which are the 2 rivers
we saw at Orcha? asked रमेश। कि सर वे दो नदियां कौन सी थी जिनमें हमें ओरछा देखा? रमेश ने पूछा। सर व्हाट इज अ छात्रा एंड asked शोभा। सर व्हाट इज अ छात्रा? किसने पूछा? शोभा ने पूछा। सर छात्रा क्या होती, छात्री क्या होती है? शोभा ने सर से प्रश्न पूछा। अरे सर सेनापत का अर्थ क्या है? सेनापत का अर्थ क्या है? बोला, सर ने बोला आरंभ ने पूछा। well one by one, do not ask so many questions at the same time. The Betwa and the Jamuni are the two rivers you saw at Orcha. They meet at the Orcha. Do you know what is the meeting place of river called? What is the river meeting place called? ठीक है, एक बात मुझे साथ इतना सारे क्वेश्चन पूछो। ओरछा में दो नदियां तुमने देखा थी, बेतवा और जमुनी, ये ओरछा के मिलते। सर ने पूछा कि मुझे ज्यादा प्रश्न मत पूछो। बेतवा और जमुनी ये दो नदी एक दूसरे को मिलते हैं ओरछा में। मीटिंग प्लेस, रिवर्स मीटिंग प्लेस बेतवा एंड जमुनी, they are the two rivers, the meeting place for the Orcha. संगम सचिन से उत्तर दिया। Yes Sachin, very good. The word for संगम in English in confluence. confluence का मतलब है, मैंने लिख दिया, confluence means संगम। इसका मतलब है हाँ सचिन बहुत अच्छा अंग्रेजी में संगम के लिए confluence शब्द है। confluence means संगम, confluence इंग्लिश वर्ड है संगम। ओके, कैन यू टेल मी नेम ऑफ अ प्लेस वेयर दे थ्री रिवर्स मीट? आस्क्ड द टीचर ने पूछा कि कैन यू टेल मी नेम ऑफ अ प्लेस वेयर थ्री रिवर्स मीट? आस्क्ड द टीचर ने बच्चों से पूछा कि क्या तुम मुझे एक ऐसी जगह का नाम बता सकते हो कि जहाँ पर तीन नदियाँ मिलते हैं? अध्यापक ने पूछा बच्चों से कि क्या मुझे आप बता सकते कि जहाँ पर तीन नदियाँ मिल सकते हैं? तो देखो, द गंगा, द जमुना, द सरस्वती मीट इन इलाहाबाद। आंसर सचिन ने आंसर दिया कि गंगा, जमुना और सरस्वती कहाँ मिलते हैं? इलाहाबाद में। गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीन नदियां इलाहाबाद में मिलते। ऐसे किसने? सचिन ने उत्तर दिया। Yes, the meeting place of these rivers in Allahabad is called संगम। कि इलाहाबाद में इन नदियों के मिलने वाले स्थल संगम कहलाते। इलाहाबाद में ये तीन नदियों को मिलने के लिए क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। ओके, कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर? आस्क्ड मिस्टर शाह। क्या हम वह सरस्वती नदी को देख सकते हैं? मिस्टर शाह ने पूछा कि क्या आप सरस्वती नदी देख सकते हैं? ऐसे किसने पूछा? मिस्टर शाह।
टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनापत? अस्मा आस्क्ड अगेन। अध्यापक सेनापत का क्या अर्थ होते? आसमा ने पूछा कि अध्यापक से आसमा ने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनापत? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनापत? ओके, सेनापत इज द मूवमेंट बिल्ड इन मेमोरी। मेमोरी का मतलब मैंने लिख के दिया, मेमोरी का मतलब, मेमोरी का स्मृति, मेमोरी का मतलब स्मृति। सेनापत भी मैंने लिखा, सेनापत में स्मारक, सेनापत में स्मारक। सेलर में नाव। और अदर वे डाइड इन सम फार अवे प्लेस। द चार्ट्स दैट यू सो आर momentous built in memory of the Bundela king and members of the family, Mr. Shah explained. देखो, इसका अर्थ है कि सेनापत एक ऐसा स्मारक है जो उन सैनिकों, नाविक या अन्य लोगों को याद से बनाया जाता है जिसकी मृत्यु किसी दूर के स्थान में हुई थी, जिनकी छात्रियों के तुम देखे हैं कि बुंदेला राजा और उनके परिवार में किस मूर्ति बने, इनमें स्मारक मिस्टर शाह ने समझाया। मिस्टर शाह ने ऐसे समझाया कि जिसकी मृत्यु होती है, जो नाविक का मतलब है सेलर, नाविक, नाव होती है, और जिस सेनापत ऐसे लोगों को क्या करते हैं? वो बुंदेला राजा ने एक मेमोरी मतलब स्मृति और क्या सेनापत स्मारक बनाया है। ओके, सर, हु वर द बुंदेला किंग? आस्क्ड मोहन। सर, हु वर द बुंदेला किंग्स? आस्क्ड मोहन। सर, बुंदेला राजा कौन था? मोहन ने पूछा। द बुंदेला were the king who made Orcha their capital in the 16th century, said Shah. बुंदेला वे राजा थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओरछा का अपनी राजधानी बनाया। मिस्टर शाह ने कहा कि बुंदेला राजा कौन था? वो 16वें शताब्दी में अपना राज पर क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। 16वें शताब्दी में बुंदेला राजा ने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। ऐसे किसने बोला? मिस्टर शाह ने बोला। Who built those beautiful buildings at Orcha? asked Mohan. कि ओरछा में सुंदर भवन किसने बनाया था? मोहन ने पूछा। ओके, इट वॉज द बुंदेला किंग हु बिल्ड देम। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक बिल्डिंग इन अ country. So they are called the buildings of the Bundela style, and tourists from all over the world come to the see, said the teacher. Okay, वे बुंदेला राजा के जिन्होंने अपने बनाया थे हमारे देश में ऐतिहासिक इमारती में अलग अलग, इसलिए बुंदेला शैली भवन कहते हैं। और विश्व में पर्यटक उन्हें देखने के लिए अध्यापक ने कहा था कि
जो हमारे बुंदेले राजा था उसने क्या करा था, ऐतिहासिक इमारती और उनकी इमारती जैसी शैली के भवन में बनाए थे। ओके सर, वी हैव सीन सम वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब आश्चर्यचकित, वंडरफुल पेंटिंग्स, आश्चर्यचकित, जो पेंटिंग करा था, जो पेंटिंग का मतलब है जो दीवार पर पेंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं आश्चर्यचकित हो गए पेंटिंग देख के। ऑन द वॉल्स से सविता, यस द वॉल्स एवरी बिल्डिंग इन ओरछा आर डेकोरेटेड एंड पेंटिंग, दे आर कॉल्ड मुरलास, मुरलास का मतलब है बिनती, मुरला की बिनती। In the 16th-17th century, Murla were reached a great height in India. देखो सर, हमने दीवारों को कुछ शानदार चित्र देखा है, दीवारों को हम सर बहुत शानदार चित्र देखा है। वह कौन से, सविता ने कहा, ओरछा में प्रत्येक भवन, ओरछा के प्रत्येक दीवार के क्या भवन में क्या बनाया है, इन्हें मुरलास कहा जाते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी ने मुरला कृत्यों से भारत में अपनी चरम सीमा बहुत ऊंचाई है उसने बनाया है। ओके ड्यूरिंग द पीरियड टू बेसिक, बेसिक का मतलब है मूल्य, बेसिक का मतलब है मूल्य। Okay, they were known as the Rajput and Mughal style. The Rajput style of painting was further divided into 3 different styles. Okay, and देखो कि यहाँ पे राजपूत स्टाइल पेंटिंग further divided into dispute and styles, राजस्थानी, कांगड़ा एवं बुंदेला, कांगड़ा और बुंदेला, राजस्थानी और कांगड़ा बुंदेला। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, देखो बोलती कि इसका अर्थ है कि इस काल में पेंटिंग 2 आधारभूत शैली में बहुत मशहूर थी, राजपूत और मुगल। देखो ये कितनी 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी, मुगला, राजस्थानी एंड मुगल, इनकी इतनी शानदार पेंटिंग थी और बहुत सुंदर थी। Sir, who looks after these buildings now? Asked Asma. कि सर आप ये भवन को अभी कौन देख रेख कर रही है? ओके These are the government department called the archaeology department. This department is responsible for looking after ancient and historical monuments, building, etc. By this time the bell had rang. The teacher said, "It is sim all you have enjoyed your visit to Orcha. We can continue discussion tourist." देखो टीचर ने क्या बोला कि ये सरकार विभागन है और जिसकी पूर्वक विभाग किया जाता है। एक विभाग से पुराने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक मूर्ति अधिक देखभाल के लिए उत्तीर्ण है। और इस समय घंटी लगी और अध्यापक ने बोला कि अभी कंटिन्यू डिस्कस करना। बच्चे देखो क्या हमको सिखाएगी कि अ विजिट टू ओरछा, ओरछा का भ्रमण, ओरछा का भ्रमण, एंशियंट प्राचीन, बेसिक मूल, सेनापत स्मारक, कॉन्फिडेंस संगम, डिफरेंस भिन्न, डिस्कस विचार, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, मोमेंटस
स्मारक. मेन मुख्य. सेंटर मीन्स केंद्र. मूला भित्ती. पॉप्युलर लोकप्रिय. स्ट्रक्चर संरचना बनावट. सिट्युएटेड स्थिति. एंड वंडरफुल आश्चर्य मेमोरी स्मृति. देखो चिल्ड्रन, दिस लेसन इज अ वेरी विजिट टू ओरछा. विजिट टू ओरछा का मतलब है ओरछा का भ्रमण. ओरछा में खास हमको जो 16th and 17th सेंचुरी द बुंदेला राजा राजस्थानी पेंटिंग एंड द जो 3 नदी है गंगा जमुना सरस्वती, इनके बारे में हम सीखे हैं बच्चे. अभी आप घर में अच्छी तरह से वीडियो पढ़ना और लेसन रीड नाइसली एंड स्टडी वेल. ओके, लेटर ऑन क्वेश्चन आंसर आई विल गिव, बट स्टडी वेल. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and very nice question. Have you seen any old temple? Yes, I have seen the Concord temple. Okay, do you know when it was built? Yes, it was built in 14th century. Okay, where is situated? It is situated surely in Murana. Okay, very nicely learned lesson. Okay, thank you. God bless you.